नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है गुजरात बुलेटिन का। अहमदाबाद के खोखरा इलाके में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने के मामले में क्राइम ब्रांच ने असलाली से मधुपुरा इलाके में रहने वाले 2 आरोपियों मेहुल ठाकुर और भोलो ठाकुर को गिरफ्तार किया है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। अहमदाबाद के खोखरा इलाके में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने के मामले में क्राइम ब्रांच ने असलाली से मधुपुरा इलाके में रहने वाले 2 आरोपियों मेहुल ठाकुर और भोलो ठाकुर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए 1000 से ज्यादा फुटेज की जांच की गई और 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। वहीं 22 दिसंबर की आधी रात 3 बजे के आसपास 2 एक्टिवा पर 4 लोग आए। आरोपी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई। आरोपी भोलो और मेहुल ने पथराव कर मूर्ति तोड़ी थी। यह बात सामने आई है कि नादिया और ठाकुर समुदाय के बीच पुरानी दुश्मनी में मूर्ति तोड़ी गई है। वर्ष 2018 में नादिया और ठाकुर दंगा हुआ था और क्रॉस फरियाद की थी। इस दिन को लेकर 5 आरोपियों ने प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया था। उसमें 3 आरोपी मुकेश ठाकुर, चेतन ठाकुर और जयेश ठाकुर अभी भी वांछित हैं। 23 ડિસેમ્બર 2024ની સવારે 5 જણા અજાણ્યા માણસ જેની વિરુદ્ધમાં ખોખરા પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર દાખલ થયેલી છે 2 વાગે અને 48 મિનિટની આસપાસ ત્યાં બાબા સાહેબ અંબેડકરજીની મૂર્તિ ખંડિત કરવામાં આવી અને આ લોકો 2 સ્કૂટી પર આવ્યા હતા અને પછી ખંડિત કરીને જતા રહ્યા। એમાં સીપી સાહેબની સૂચના મુજબ क्राइम ब्रांच અને સ્થાનિક પોલીસની સ્વીપ ટીમે કુલ 20 ટીમે કામ કરતી હતી। 1000થી વધારે જેટલા સીસીટીવી અને અલગ અલગ સ્કૂટીઝનો પણ ચકાસણી કરવામાં આવ્યો અને આજે સવારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચનો 2 આરોપીનો પકડવામાં સફળતા થઈ છે અને જો આરોપી પકડ્યા છે એનું નામ છે મેહુલ ઠાકુર અને બોલા। બાકી 3 આરોપીનું નામ મળી ગયા છે અને આ મોબાઈલ બંધ કરીને ભાગી ગયા છે। એની પણ પાછળ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને સેક્ટર 2ની ટીમો છે। આ બધા આરોપીઓ જુગનદાસની ચાલી ઈદગાહ સર્કલ પાસે રહે છે અને એનો જો કારણ છે બધા જાણવા માંગે છે કે કારણ શું છે ખંડિત કરવામાં, તો જુગનદાસની ચાલીની બાજુમાં નવાનું ડેલું છે, ત્યાં નાડિયા સમાજ રહે છે અને આ લોકોનો જૂના માથાકૂટ ચાલે છે। 2018માં બંને સમાજ વચ્ચે અલગ અલગ 2 વાર ક્રોસ રાઇટિંગનો ગુના દાખલ થયા હતા અને એમાં એક આરોપી જયેશ ઠાકોર હતા અને 23 તારીખનો જો એફઆઈઆર દાખલ થઈ છે એમાં પણ જયેશ ઠાકોર આરોપી છે। બાકી તપાસ આગળની તપાસ ખોખરા પોલીસ કરશે। સર મને સમજાવવું એ નહીં કે ઈદગાહ પાસે માથાકૂટ ચાલે છે, ઝઘડો ચાલે છે, અહીંયા કેમ મૂર્તિ તોડી? આ લોકો ત્યાં સ્કૂટી પર ફરતા હતા અને એનો મનમાં આવ્યો કે ભાઈ આ લોકો બાબા સાહેબ એક પ્રતીક છે, તો આ લોકોનો મનમાં આવ્યો ને એને નુકસાન પહોંચાડ્યું। સાહેબ અદાવત કોની સાથે ચાલી રહી હતી આ લોકોની? જે નાડિયા સમાજ અને ઠાકોર સમાજની ચાલે છે। અચ્છા, તો આ લોકોને એવી શંકા હતી કે આ જે વકીલની ચાલી છે, જે જગ્યાએ આ બનાવ બન્યો છે ત્યાં આ સમાજ રહે છે, સમાજના કેટલાક લોકો રહે છે, આગેવાનો રહે છે, એવું કંઈ આ લોકોને જાણ હતી કે કેમ આરોપી? આ બધા જો તપાસનો વિષય છે કે ભાઈ એના પાછળ કોઈ બીજા કારણ તો નથી, પાછળ કોઈ મોટા માથા તો નથી, આ કોઈ શાંતિ ડોલવાનો પ્રયાસ તો નથી, આ બધા તપાસનો વિષય છે। મને ઉમ્મીદ છે કે ખોખરા પોલીસ આજે કસ્ટડી લેશે, કાલે રિમાન્ડ માંગશે અને રિમાન્ડ દરમિયાન આ બધા પ્રશ્નોનો જવાબ મળશે। સાહેબ આરોપીઓએ પૂછપરછ કરી, એ લોકો ત્યાં શું કામ ગયા હતા એ બાજુ? આ બધા ફરતા હતા રાત્રે, કોઈ સ્પેશિયલ ऐसा નથી કે ત્યાં સ્પેશિયલ તોડવા યા ખંડિત કરવા ગયો હતો, ફરતા હતા। સર કેવી રીતે તોડી હતી આ મૂર્તિ અને ખાસ તો મુખ્ય આરોપી કોણ છે આમાં? એને જો બોળા છે એને પથ્થર લીધું અને પથ્થરથી તોડવામાં આવ્યો અને મેન આરોપી ચેતન અને જયેશ। ચેતન અને જયેશ આ બોલાનો ઉશ્કેર્યા હતા કે હા, બધા પાંચો એક જણા પહેલા કેટલી પર મળ્યા હતા ને ત્યાંથી બધા ભેગા થઈ ગયા। ત્યાંથી નક્કી કર્યું હતું કે આ સમાજ છે। સાહેબ આ લોકોનો બેકગ્રાઉન્ડ શું છે? 2018માં
આ લોકોની વિરુદ્ધમાં ગુનાહિત ઇતિહાસ છે અને 2020માં મેહુલ પ્રવીણ ઠાકોરની વિરુદ્ધમાં માધવપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં 188 2020માં દાખલ થયેલી અને પ્રોહિબિશનનો ગુનો છે. નશો કઈ કરેલો હતો કે નહીં સેન્ટર ઉપર? નશો કરેલો છે કે નહીં? અત્યારે એની બ્લડ સેમ્પલિંગ કરવામાં આવશે. ત્યારે તો એવા લાગતા નથી કે पर आ दिवसे हो सके कि इन्हें नशा करे. अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. अहमदाबाद के जोन 1 एलसीबी ने सरकारी आवास योजना के नाम पर 250 से अधिक लोगों से ठगी करने वालों को गिरफ्तार किया है. क्या कुछ पूरा प्रकरण है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं. अहमदाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना मकान दिलाने का लालच देकर 250 से अधिक लोगों से ठगी करने वाले आरोपी विरम सिंह राठौड़ को जोन 1 एलसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने बताया कि वह सचिवालय में नौकरी करता है और गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान दिलाने का लालच देकर पैसे ऐंठता था. इस मामले में कुल 3 शिकायतें दर्ज की गई हैं. आरोपी ने इस तरह से लोगों से कुल 3 करोड़ से ज्यादा की रकम ऐंठ ली है. गिरफ्तार आरोपी ने बीए तक पढ़ाई की है और जेपीएससी की तैयारी कर रहा था. इस दौरान उसे लोगों को इस तरह से धोखा देने का विचार आया और पिछले 3 वर्षों में कई लोगों से पैसे वसूले. आरोपी के अधीन एजेंट भी थे तो उनके पास ग्राहक लाते थे. आरोपियों ने पीड़ितों को साइंस सिटी जैसे पॉश इलाके में बन रहे एयूडीए मकान दिखाए और रुपए ऐंठ लिए. आरोपी ने वस्त्रापुर, नारायणपुरा और 16 के लोगों को ठगा था. इस मामले में जोन 1 एलसीबी की टीम ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. दर्ज किया गया है और क्या हकीकत सामने आई? हमारे जोन 1 की ऑफिस में एक एप्लीकेंट आए थे बहन, उनका नाम है सीमा बेन भट्टी. उन्होंने अपनी जो भी कुछ डिटेल्स बताई, उस डिटेल्स के में काफ़ी चौंकाने वाली बातें सामने आई. एक व्यक्ति है विरम सिंह उर्फे वीरेंद्र सिंह, जो अपने आप को साहब तरीके सबके सामने प्रस्तुत करता है. उस व्यक्ति ने इन बहन से लगभग 18 लाख रुपए लिए और ऐसा बताया कि मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान उनको दिलवा दूंगा. बेसिकली उनको विश्वास दिलाने के लिए इसने एक डॉक्यूमेंट को फोर्ज किया. उसमें इनको वो लेटर दिखाया कि ये देखिए आपका लेटर जिसके अंदर आपको मकान अलोकेट हो गया है. उनको जगह के लिए भरोसा दिलाने के लिए जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स थी प्रधानमंत्री आवास योजना की, उन पर जाके दिखाने का कोशिश की ताकि उससे उन लोगों को भरोसा हो जाए कि इस जगह पे हम लोगों को मकान मिलने वाला है. और इस तरह से ये एकमात्र किस्सा नहीं है. उन बहन ने जो ये बात हमारे सामने की है उसकी वजह से आज हमारे पास में लगभग जो डिटेल्स आई है उसमें 250 से ज़्यादा लोगों के साथ इस आरोपी ने इस तरह का जो है वो षड्यंत्र करके उनके पैसे लिए हैं. इसमें कुछ लोग सामने आए हैं साथ में जो लोग इसकी मदद कर रहे थे. कुछ लोग इंटेंशनली मदद कर रहे थे, कुछ लोग जो है अनइंटेंशनली मदद कर रहे थे. इंटेंशनली इस तरीके से कि उन लोगों को भी कुछ अमाउंट जो है ये दे देता था, ट्रांसफ़र कर देता था जब कोई किसी को ग्राहक के तौर पे लेके आता था. अनइंटेंशनल इस तरह से कि किसी को अपने रिश्तेदार को कोई मकान दिलाना है और ये इसके संपर्क में आता था तो वो 1, 2, 4 लोगों को इससे संपर्क करा देता था, पर उसका कोई भी जो फाइनेंशियल लाभ वो खुद नहीं लेता था. इस तरह से हमारे सामने 8-10 लोग आए हैं, उनके अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है. पैसों का जो ट्रांजेक्शन हुआ है ऑनलाइन और कैश दोनों तरीके से हुआ है. टोटल अमाउंट इसमें अभी तक जो सामने आया है वो लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है. और ये सारे ही लोग जो हैं निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं जिन लोगों का डेली बेसिस पे अर्निंग है और ऐसे लोगों को इसने जो है वो अपने षड्यंत्र के तहत फंसाकर उनको वित्तीय नुकसान पहुंचाया है. सर, आरोपी मूल कहाँ का रहने वाला है? अहमदाबाद में कब से आया है और कितने समय से ये इस तरह से धोखाधड़ी कर रहा था? जो आरोपी है वो पढ़ा लिखा है. पहले इसने अपने आप को बताया कि जीपीएससी की तैयारी कर रहा था. बेसिकली ये खांबा अमरेली का रहने वाला है और इसने किसी एक जगह कैफ़े पे जब सुना किसी को कि इस तरह से मकान के लिए उनको ज़रूरत है तो इसने अपने दिमाग में ये पूरा का पूरा षड्यंत्र तैयार किया. और 1-2 बार जब ये सक्सेसफुल हुआ तो फिर इसके बाद ये लगातार करता चला गया और इतने सारे लोगों के साथ में इसने षड्यंत्र रच के इन सब लोगों का वित्तीय नुकसान किया. इसने इन पैसों से काफ़ी अलग अलग तरह के बिजनेसेस चालू करने का और उससे फ़ायदा कमाने का सोचा. कुछ लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ये भी कहता था कि अगर आपको मकान नहीं मिला तो मैं आपके पैसे वापस दे दूंगा. और कुछ अमाउंट पार्शल वे में इसने अमुक लोगों को दिया भी सही, जिससे अगर कोई लोग एक दूसरे से इंटरनली कनेक्ट हों या कम्युनिकेट करें
तो उनको ये भरोसा हो जाए कि नहीं, ये बात जो बोलता है वो सही बोलता है। अमुक बाबत में ऐसा भी ध्यान में आया है कि इसने कई लोगों को सरकारी ऑफिसेज में बुला के वहाँ पे थोड़ी देर बिठा के वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स सच्चे झूठे उनके ऊपर साइन करा के उनको फॉर्म फिलअप करवा के इस तरह का विश्वास संपादित करने की कोशिश की कि आप एकदम सही जगह पे हैं और आपका जो काम है वो समय में हो जाएगा। एक जो इसको बड़ा एडवांटेज मिला इस सब चीज़ में वो था कि लगभग जितनी भी इस तरह की आवास योजनाएं होती हैं उनके कंस्ट्रक्शन में 2 से 2.5 साल का समय लगता है, और उस वजह से ये पूरा का पूरा इसका मानसिकता है, जो विकृत मानसिकता है, ये 2-2.5 साल तक लगातार चलती रही। ये लगभग साल 2000 के बाद से ही अपने प्रयास कर रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट्स कैसे लोगों को दे जाते हैं? अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की बढ़ते अगली खबर की ओर। बरौड़ के वागोडिया में समस्त बसावा समाज गुजरात द्वारा छात्रों की शिक्षा के लिए एजुकेशन भवन का निर्माण शुरू किया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। गुजरात में समस्त वसावा समाज गुजरात वागोडे खंदा रोड आरआर केबल कंपनी के सामने समस्त वसावा समाज के छात्रों की शिक्षा के लिए निःशुल्क आवास और सर्वोत्तम शिक्षा की सुविधा के साथ गुजरात की पहली इमारत का निर्माण कर रहा है। इस क्रम में 14 दिसंबर को वागोडिया भवन भूमि स्थल पर इसी प्रकार की बैठक का आयोजन किया गया। समस्त वसावा समाज गुजरात के अध्यक्ष ईश्वर भाई वसावा और उप अध्यक्ष चिमन भाई वसावा के साथ साथ महामात्री अजीत भाई वसावा, साथ ही समिति सदस्य रावजी भाई वसावा, सूर्यकांत वसावा, धर्मेश भाई वसावा, महेश के वसावा, महेंद्र वसावा, दिलीप भाई आर्य और वडोदरा साईजी पूरा पादरा तालुका टीम वाघोडिया तालुका टीम ऑल लीडर्स यूथ एसोसिएशन कार्यकर्ता उपस्थित थे। नमस्कार मित्रों, हूँ अजीत भाई एम वसावा, समस्त वसावा समाज महामंत्री गुजरात। 29/12/2024 રોજ વાઘોડિયા આરઆર કેબલની સામે સમસ્ત વસાવા સમાજ ગુજરાતની સાધારણ સભા મળવાની છે। સાધારણ સભા બાદ સ્નેહ સંમેલનનો પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવેલો છે। સ્નેહ સંમેલન બાદ સમસ્ત વસાવા સમાજની આગામી મુદત માટે 51 જણના ચૂંટણી અને સિલેક્શન કરવામાં આવશે। આ સમસ્ત વસાવા સમાજની જમીન ઉપર અમે 2 વર્ષ પહેલાં જમીન લીધેલી છે। 2 વર્ષ પહેલાં જમીન લીધી ને અત્યારે અમે આ સમાજની જમીન ઉપર આગામી વર્ષમાં એક સમાજનું ભવન બનાવવા માગીએ છીએ। સમાજની ભવનની સાથે સાથે હોસ્ટેલ બી બનાવવા માગીએ છીએ, જેથી કરીને આપણા સમાજના દરેક જે સ્ટુડન્ટો જે સારું ભણતા હોય એને અહીંયા વિનામૂલ્યે અમે ભણાવવા માગીએ છીએ અને સારું આપણું સમાજનું નામ રોશન કરે અને સારી એ નોકરી મેળવે, સારા સમાજના ક્લાસ 1-2ના ક્લાસીસ અહીંયા મળે અને સારા સમાજના એ હોદ્દા પર એ બિરાજમાન થાય, એવી અમારે આ સમાજની સમસ્ત વસાવા સમાજની લાગણી છે। સમસ્ત વસાવા સમાજ ગુજરાત દર વર્ષે સાધારણ સભા અને સ્નેહ સંમેલન યોજે છે। તારીખ 29/12ને દિવસે સાધારણ સભા, એમાં આ વખતે 5 વર્ષ માટે હોદ્દેદારોની ચૂંટણી કરવાની છે અને એમાં એક પ્રમુખ, મહામંત્રી, સહમંત્રી અને એવા 14 હોદ્દેદારોને ચૂંટવાના છે અને એમાં 51 કારોબારી સભ્યો, ટોટલ 51 ધારાસભ્યોની ચૂંટણી 29 તારીખના દિવસે થશે અને સાથે સાથે સ્નેહ સંમેલન પણ રાખવામાં આવ્યું છે। સામાન્ય રીતના સ્નેહ સંમેલનની અંદર શરૂઆતમાંથી અમે રાજકારણી ધારાસભ્યોને બોલાવતા હતા। આ વખતે નવો પ્રયોગ કરવા અમે જઈ રહ્યા છીએ અને આ વખતે ફક્ત ક્લાસ 1 ઓફિસર, ક્લાસ 2 ઓફિસર એ બધા ઓફિસરોને બોલાવ્યા છે અને રિટાયર સભ્યોનું સન્માન અમે કરવાના છે અને આગામી જે ચૂંટણીની અંદર લગભગ ચંદ્રકાંતભાઈ વસાવા પ્રમુખ તરીકે લગભગ સર્વમાન્ય છે જ અને તેમને વિધિસર આવતી 29 તારીખે એમને ચૂંટવામાં આવશે। તમારો પરિચય? હું ઈશ્વરભાઈ કે વસાવા, સમસ્ત વસાવા समाजना माजी प्रमुख। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता मंसूरी की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नर्मदा जिले के झगड़िया जीआईडीसी विस्तार में एक श्रमिक परिवार की 10 साल की बच्ची पर एक नराधम ईसम ने
दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। नर्मदा में मिल रही जानकारी के अनुसार भरूच जिले के झगड़िया GITC विस्तार में एक श्रमिक परिवार की 10 साल की बच्ची पर एक नराधम ईसम ने दुष्कर्म करने के बाद क्रूरता को अंजाम देने की घटना सामने आई थी, जिसकी वजह से पूरे विस्तार में चकिचार मच गई थी। वहीं बच्ची को भरूच अस्पताल ले जाया गया था, वहां से बड़ोदरा SSG हॉस्पिटल में रेफर किया गया था, जहां बच्ची का 8 दिन के इलाज के बाद अवसान हुआ था। यह घटना के चलते पूरे विस्तार में गमगीनी का माहौल छा गया। वहीं जगह जगह बच्ची को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ऐसे में नर्मदा जिले के तिलकवाड़ा नगर के युवाओं की ओर से कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर बच्ची को श्रद्धांजलि अर्पण की और बच्ची की आत्मा की शांति के लिए प्रभु के पास प्रार्थना की गई। साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय मिले और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की गई है। खूब दुखद निंदनीय घटना भरूच जिला में आवेला झगड़िया GIDC खाते 10 वर्षनी बाળકી पर एक नराधार अने जे ईसम द्वारा जेना पर दुष्कर्म करवामां आव्युं अने एना पर क्रूरता आचरवामां आवी ते दीकरीनुं 10 सालनी दीकरीनुं आजे 7 થી 8 दिवस बाद सारवार दरमियान एनुं आजे दुखद अवसान थयुं छे, जे खूब ज गंभीर अने खूब ज निंदनीय छे। आवा जे दुष्कर्म करनारा जे युवानो होय एमने एक सीख मळवी जोईए, समाज वती अने सरकार वती सीख मळवी जोईए कि आवी जे बाળકીઓ હોય છે જેના પર આવા જે દુષ્કર્મ કરવામાં આવે છે એ દુષ્કર્મ ના કરે અને આ દુષ્કર્મ જે પીડિતા થઈ છે એના પરિવારને અને 10 વર્ષની દીકરીને ન્યાય મળે એ માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ। અસ્તુ ભારત માતા કી જય। नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। गुजरात बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।